Assalamu alaikum. Welcome to Multan Public School and College. Dear students, this is Asfa Shehzadi from the same institute. This is your Park Studies class for class 9. Yes, dear students, we have studied some topics of chapter number 4, and as you know, that is History of Pakistan 1. Today we'll move forward towards the topic of Indo-Pak War 1965. Dear students, this topic is given on page number 114 in English medium books and on page number 113 on Urdu medium books. This is very important topic, and in this we will discuss about causes of war, events of war, effects of this war, and the unity among Pakistan. So, first of all, we'll move forward towards the causes of war. As we know about at that time the division of subcontinent, that is the establishment of Pakistan, was totally against the willings or and wishes of Hindus. They ultimately wanted to destabilize Pakistan. They didn't like the development of Pakistan. This was the first main reason that India attacked Pakistan to eliminate its development and stability. हिंदू चाहते ही नहीं थे कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, उसका क़याम, उसकी तरक्की बरकरार रहे। वो यही उनकी पहली ख्वाहिश ही यही थी कि वो कुछ इस तरह से अपने हरबे इस्तेमाल करें कि वो पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को ख़त्म कर सकें। सेकंड पॉइंट है कश्मीर इशू। दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू दैट since 1947, Kashmir issue has remained bone of contention between these two countries. The Security Council of UN, United Nations, has passed the resolution to provide the rights of self-determination to Kashmiris. Rights of self-determination means हक़ खुद इरादियत। यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल थी, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि वो अपनी मर्ज़ी से अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करें। लेकिन ये बात भी हिंदुओं को मंजूर नहीं थी। 1962 में भारत ने चीन के साथ जंग छेड़ी और उसमें चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे एक जगह है रन ऑफ कच्छ, जहाँ जंग हुई थी। There was a border. This means you can say that this was the border clash between India and China in which India defeated. बहुत बुरी तरह से उसको शिकस्त हुई थी और इस शिकस्त की खिफ़त को मिटाने के लिए इंडिया ने पाकिस्तान को एक इजी टारगेट समझते हुए उस पर अटैक किया ताकि इंटरनेशनल लेवल पर अपनी इनक्रेडिबिलिटी को प्रूव कर सकें। जो उसको शिकस्त चाइना से हुई थी, अब वो समझता था कि पाकिस्तान एक न्यू इस्टेब्लिश्ड कंट्री है, हम इजीली उस पर अटैक करके उसको दोबारा से सब कॉन्टिनेंट में मर्ज कर लेंगे और जो हमारे इंटरनेशनल लेवल पे जो खिफ़त हुई है उस पर हम कवर कर लेंगे। लेकिन ऐसा ना हुआ। आप और उसमें जो एक पार्टी थी, रूलिंग पार्टी कांग्रेस ने, दैट वाज आल्सो अगेंस्ट पाकिस्तान। दे स्टार्टेड अ मूवमेंट टू गेट एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स टू विन द इलेक्शंस हुए इंडिया में। उन दिनों में इलेक्शंस हो रहे थे, तो उन दिनों में यही बात उन्होंने की कि ऐसे वो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स को अचीव करना चाह रहे थे जस्ट टू विन द इलेक्शंस। Dear students, these are four main points, and you can say these are four main causes which are the causes of Indo-Pak war. And
keep in your mind, dear students, that these are the causes of war can come as an additional short question of your paper. That what are the causes of war? Then you have to write these 4 points: that establishment of Pakistan, Kashmir issue, India-China war, and election in India. Right? So move forward for the next. Means first we have studied about the causes of war. Now move towards the events of war. First of all, on 6th of November 1965, India attacked Pakistan, and right after attack, the president of that time, Ayub Khan, addressed on radio and declared an emergency situation. Dear students, this topic, events of war, is given on page number 115 on English books. So you can see very clearly where the topics of events of war is given. In the first paragraph, the address of president is given in inverted commas in quotation form. The people of Pakistan shall not feel comfortable until the mouths of the Indians cannons are made quite permanently. उस वक्त तक आराम से नहीं बैठेंगे ये पाकिस्तान के लोग, उस वक्त तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक इंडिया के तोपों के मुंह मुकम्मल तौर पर बंद नहीं कर दिए जाएंगे. You can see that this speech was basically a morale booster speech. इसमें ये जो उसके तोपों के मुंह बंद नहीं कर दिए जाएंगे, ये बड़ा मोरल बूस्ट किया था आवाम का. इस चीज़ ने उन्होंने इसके इत्तेहाद को इकट्ठा करने की कोशिश की थी आवाम की. तो इसके इस वाकई इस स्पीच के बाद बड़ा इफ़ेक्टिव उनको रिस्पांस मिला आवाम की तरफ से भी. अब बेसिकली अटैक्स कहाँ कहाँ हुए थे, किन जगहों पर हुए थे? सबसे पहले अटैक ऑन लाहौर. कम टू द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस थिंग, अटैक ऑन लाहौर. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इंडिया ने लाहौर पे अटैक किया और उस वक्त के जो आर्मी ऑफिसर्स थे उनमें से हिस्टोरिकली एक बहुत बड़ा नेम है जनरल चौधरी का. जनरल चौधरी एंड हिज अदर फेलोज announced that they will take breakfast in Lahore Gym Club. That was also, you can say that their high morale and their determination that they will win the war. और लाहौर पे अटैक इंडिया ने 3-sided अटैक किए. राइट. नंबर 1, वाघा बॉर्डर पे. वाघा बॉर्डर पे under the command of Major Aziz Bhatti, there was an army company that was held over there and that was defending the country over there. Remember students, in an army company there are 80 to 100 persons होते हैं और वहाँ से इंडिया ने, जबकि दूसरी साइड पे ऑन द अदर हैंड इंडिया अटैक्ड विद अ बिग ब्रिगेड in which thousands of personnel were there. लेकिन हुआ क्या, बहुत क्लियरली हमारे मेजर अजीज भट्टी ने, यू कैन से दैट व्हेन इंडिया कुडंट, उनके कमांड से, मेजर अजीज भट्टी की अंडर कमांड उन हंड्रेड्स की कंपनी ने इतना अच्छा डिफेंड किया अपने वाघा बॉर्डर को कि वो वहाँ से वाघा बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सके और उन्हें भारत को भी मुंह की खानी पड़ी और वो वहाँ से डिफीट कर गए. When India couldn't cross through Wagah border, they attacked from Kasur. When they attacked from Kasur side, Pakistan not only defended but it did counter attack as well and occupied Khemkaran, which is a vast region of India. Remember students, there is a main point to remember. On Wagah border, when India attacked,
पाकिस्तान इज डिफेंडेड, पाकिस्तान आर्मी ने डिफेंड किया, वाघा बॉर्डर को क्रॉस नहीं करने दिया। लेकिन कसूर साइड से जब उन्होंने अटैक किया, उनका यही ख्याल था कि हम कसूर साइड से अटैक करके यहाँ पाकिस्तान को हम डिफीट कर सकते हैं। लेकिन ना सिर्फ कसूर साइड से पाकिस्तान आर्मी ने बहुत बहादुरी से डिफेंड किया, बल्कि इंडिया का एक बहुत बड़ा एरिया है खेमकरन, उसको पे ऑक्युपाई कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया काउंटर अटैक करके। इसी तरह हेड सुलेमान की भी एक बहुत मशहूर जगह है, उस पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया, पाकिस्तान ने उसको ओवरकम कर लिया। थर्ड हमारे पास जो साइड थी जहाँ से इंडिया ने अटैक किया था, बर्की। गर्ल्स, if you see on your page number 116, the first topic is Lahore. Here you can see that the three places are written: Wagah, Barki and Kasur. वागा एंड कसूर का इसमें डिटेल्स में आपकी बुक में जिक्र है, जबकि बर्की की डिटेल में नहीं मेंशन की गई। दैट्स वाई आई डिडंट राइट दैट पॉइंट बर्की, ओके। बट लेटर ऑन move to the next portion, that is Sialkot. Attack on Sialkot. As you know that there Lahore and Sialkot connected through GT road at that time. उस ज़माने में कोई मोटरवेज या कोई एडवांस ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती थी उस दौर में पाकिस्तान में, तो लाहौर और सियालकोट जीटी रोड से कनेक्ट होती थी उस वक्त में। सो इंडियाज़ पॉइंट ऑफ व्यू वाज दैट दे कैन ईजीली गेट अप्रोच टू लाहौर थ्रू सियालकोट, कि उनका ख्याल था कि अगर हम एक दफ़ा सियालकोट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उस पर फतह कर लेते हैं, तो हम ईजीली लाहौर में भी एंटर हो सकते हैं। वहाँ एक प्लेस है चविंदा सेक्टर, दैट इज़ वेरी फेमस प्लेस, right? And the reason of this it's famous is that कि वहाँ आर्मी फोर्सेस के साथ इंडिया का टैंक्स के साथ बहुत बड़ा हमला किया था। इंडिया ने अपने टैंक्स के साथ आर्मी फोर्सेस के ऊपर बहुत ज़्यादा टैंक्स के साथ बहुत बड़ा हमला किया था। You can say that there was a big war of tanks with India and Pakistan in चविंदा सेक्टर, और ये कहा जाता है कि ये बिगेस्ट वॉर ऑफ टैंक्स थी आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2, यानी कि पाकिस्तान was not having that so much power and so much tanks at that time, इतने टैंक्स नहीं थे उस टाइम उनके पास, but they successfully defended not only armed forces but civilians also use tactics. उस टाइम जब आपके पास सहूलियात कम होती हैं, फैसिलिटीज़ कम अवेलेबल होती हैं, और आपके पास बड़ा मुकाबला करने के लिए सामने होता है, तो उस टाइम आप टैक्टिक्स यूज़ करते हैं, टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो सिविलियंस ने, कॉमन पीपल ने आर्म्ड फोर्सेस का बहुत ज़्यादा साथ दिया। वो किस तरह? उन्होंने क्या किया? दे टाइड बॉम्ब्स विद देयर बॉडीज एंड लेड ऑन अंडर द टैंक्स। देखें स्टूडेंट्स, कहने में ये बात बहुत आसान है, मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, लेकिन एक शख्स जो अपने साथ बॉम्ब बांध के लेट जाए, उसको मोर देन 100% ये श्योर होता है कि नाउ ही इज़ गोइंग टू डाई, कि अब वो 100% उसकी मौत यकीनी है। लेकिन उन्होंने अपनी जानों की परवाह किए बगैर अपनी बॉडीज़ के साथ बॉम्ब बांधे और वो इंडिया के टैंक के नीचे लेट जाते थे। उनका ये तो श्योरिटी थी कि अगर हम एक मरेंगे तो हमारे साथ एक इंडिया का टैंक भी ज़रूर तबाह होगा। सो आर्मी फोर्सेस अलॉन्ग विद द सिविलियन पीपल, दे सक्सेडेड इन दिस बिगेस्ट war of tanks, which was saying that after the World War II, that was the biggest war of tanks. नेक्स्ट इवेंट्स ऑफ वॉर में हमारे पास आ जाता है अटैक ऑन राजस्थान। नाउ
from the defeated of from the Lahore side, Kasur and Sialkot, they tried to attack from Sindh side. They attacked on Rajasthan. They thought that if they occupy Hyderabad, they can easily get approach and occupy Karachi as well. Either and from land side and from sea side as well. उनके पास दो ऑप्शन थी, ज़मीनी रास्ते से भी और समंदरी रास्ते से भी. They could easily move towards Karachi. But with the help of Hur Mujahideen, they didn't get their targets. Hur Mujahideen, dear students, ये एक आर्मी फोर्सेस के और रेंजर्स ने हुर मुजाहिदीन के साथ डिफेंड किया और उनके ऊपर अटैक किया. अब हुर क्या है बेसिकली? हुर बेसिकली इज़ द नेम ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स. एक बहुत बड़ा नाम है वहाँ सिंध में पीर पगाड़ा का. द फॉलोअर्स ऑफ पीर पगाड़ा आर कॉल्ड हुर. यू कैन से दैट द ग्रुप ऑफ हुर, दिस ग्रुप इज़ कॉल्ड हुर. मेंबर्स, उनके मेंबर्स को हुर कहा जाता था. और वहाँ उसके बाद उन्होंने यहाँ भी इंडिया ने डिफीट ही हुई, उसको शिकस्त हुई, वो वहाँ से भी कामयाब नहीं हो सका. नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ एयर वॉर. Yes, in this war, in land war, yes, India attacked, but in air war, Pakistan attacked first. ज़मीनी रास्तों पे जितनी दफ़ा भी अटैक किया इंडिया ने पहल की. बट रिमेंबर स्टूडेंट्स, एयर वॉर में पाकिस्तान ने अटैक किया फर्स्ट, पहल उन्होंने की, एंड डिस्ट्रॉयड मैनी इम्पोर्टेंट इंडियन एयर बेसिस by successfully attacks. If you see on the page number 117 on your book, paragraph number 1, you can see all those important names of those air bases who were destroyed by Pakistan Air Force. Means you can say the Pathankot, Jodhpur, Adhampur, Halwara and Jamnagar, Srinagar. All these are Jammu and Srinagar. All these air bases were destroyed by Pakistan Air Forces. Yes students, these names can also come as a short question कि वो एयर बेसिस के नेम बताएं इंडियन एयर फोर्सेस के जो पाकिस्तान एयर फोर्सेस ने डिस्ट्रॉय किए थे. In response, when India tried to attack on an important Sargodha air base, but again defeated, our great squadron leader Muhammad Mahmud Alam, which is known as MM Alam, he made a world record by shooting down 5 fighter jets in less than 1 minute. ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो अभी तक कायम है. उन्होंने लेस देन 1 मिनट में ही शूटेड 5 इंडियन फाइटर जेट्स इन सो मच लेस टाइम, एंड दैट इज़ वेरी ऑनरेबल फॉर पाकिस्तान एज वेल. नाउ कम टू नेवल वॉर. लैंड वॉर में हमने जिक्र कर लिया कि लाहौर, कसूर और वाघा पे, सियालकोट पे उन्होंने जिस तरह से अटैक्स किए, राजस्थान ज़मीनी रास्ते से राजस्थान से अटैक किया. एयर अटैक्स जो पाकिस्तान ने बेशक पहल की, लेकिन वहाँ एयर अटैक्स किए उन्होंने, एयर बेसिस डिस्ट्रॉय की. उसके बाद नेवल वॉर आई, बहरी रास्ते से जो अटैक्स किए गए. तो काठियावाड़ इज़ एन इंडियन कोस्टल रीजन, राइट, where Indians नेवल बेस वॉज एट दैट कोस्ट. इंडिया की उस टाइम बहुत इम्पोर्टेंट जो कोस्ट थी वो डवारका वहाँ थी. काठियावाड़ की जो कोस्टल रीजन है उसका इंडिया का, वहाँ इंडिया की सबसे इम्पोर्टेंट नेवल बेस जो है, नेवल कोस्ट आप कह लें, नेवल बेस कह लें, डवारका वॉज ऑल्सो देयर. और ये इट वॉज कंसिडर्ड एज द स्ट्रोंगेस्ट नेवल बेस.
in India. Ocean at that time, in the Indian Ocean at that time, but Pakistan successfully attacked on that base. पाकिस्तान ने उसके ऊपर बड़ा ऐसे अटैक किया कि जितनी भी स्ट्रॉन्गेस्ट उनकी नेवल बेस थी वो पाकिस्तान के नेवल अटैक से डिस्ट्रॉय हो गई। और इन रिस्पॉन्स जब इंडिया ने उसी तरह अटैक किया तो इंडियन शिप वॉज संक, और जब इंडिया का वो जहाज़ डिबो दिया गया तो उसके बाकी जहाज़ वापस चले गए। उनमें ज़रूरत ही नहीं हुई कि वो मज़ीद आगे आते और उसका सामना करते। तो यहाँ नेवल वॉर में भी पाकिस्तान को सक्सेस मिली और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपने मुल्क का डिफेंड किया। नाउ कम टू सीज फायर। सीज मीन्स स्टॉप, सीज मीन्स स्टॉप, सीज फायर मीन्स जंग बंदी। विद द एफर्ट्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है अक़वाम मुत्तहिदा जिसको उर्दू में कहा जाता है, उन्होंने 23 सितंबर 1965 को सीज फायर अनाउंस कर दिया। दे अनाउंस्ड a ceasefire on 23 September 1965. Dear student, do you remember that this war was started on 6 September 1965 and it was stopped on 23 September 1965. So this war was continued till 17 days. And these 2 points, even the date of ceasefire and how many days this war was continued, these two things can come into objectives, right? So you can highlight and underline all the important things whatever we are discussing over here. Next, the last point of your page 117, the effects of war. इफ़ेक्ट्स क्या हुए थे इस जंग के, असरात क्या हुए थे पाकिस्तान के ऊपर इस जंग के, क्या इफ़ेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव? लेट्स सी। द फर्स्ट इफ़ेक्ट ऑफ वॉर ऑन पाकिस्तान वाज इंटरनेशनल फेम। पाकिस्तान गॉट इंटरनेशनल फेम, एक उनको बैनुल अक़वामी शोहरत मिल गई थी कि देखें न्यू एस्टैब्लिश्ड कंट्री ने कैसे इंडिया को डिफ़ीट किया, कम सहूलियात और कम फैसिलिटीज़ रखने के बावजूद अपनी हिम्मत और बहादुरी के साथ अपने मुल्क को डिफेंड किया। इस बात से पूरे इंटरनेशनल लेवल पे उनको बहुत अच्छी फेम और डिग्निटी हासिल हुई थी। सेकंड पॉइंट था कश्मीर इशू। ये बात आपको पहले से बताई थी, द बेसिक रीज़न ऑफ दिस वॉर वाज कश्मीर इशू। तो कश्मीर इशू वाज वंस अगेन हाईलाइटेड थ्रू दिस वॉर। जिस बात को लोगों ने कंडेम कर दिया था, थोड़ा सा दबा दिया था या जिक्र नहीं किया गया था, तो इस वॉर के थ्रू कश्मीर इशू दोबारा से हाईलाइट हो गया। थर्ड पॉइंट है टू फेस करेक्टर्स ऑफ वेस्ट। नाउ द पॉइंट इज व्हाट डज इट मीन? डियर स्टूडेंट्स, एज देयर वर डिफेंस एग्रीमेंट्स विद डिफरेंट वेस्टर्न कंट्रीज ऑफ पाकिस्तान, इंग्लैंड के साथ, अमेरिका, जर्मनी एंड फ्रांस वगैरह के साथ इनकी पाकिस्तान के डिफेंस एग्रीमेंट्स थे कि ज़रूरत पड़ने पर उनको डिफेंड करेंगे। लेकिन ज़रूरत पड़ी, 1965 की वॉर हुई पाकिस्तान एंड इंडिया के दरमियान, एंड दे नेवर सपोर्टेड, नीदर अ सिंगल वेस्टर्न कंट्री सपोर्टेड पाकिस्तान टू डिफेंड देयर कंट्री। सो इससे क्या हुआ, वेरी क्लियरली बात सामने आ गई कि जो वेस्ट का टू फेस करेक्टर था, उनका दोगलापन जिसको हम कहते हैं, मुनाफकत कह लें, वो सामने आ गई। इसका एक प्लस पॉइंट तो पाकिस्तान को ये भी हुआ कि पाकिस्तान was able to save themselves, to avoid themselves to gain the agreements of the defense. I mean they can't depend on the western defend countries or agreements कि वो दोबारा से इस पे नहीं कर सकते थे, कि हम दोबारा से इनकी सपोर्ट का आसरा नहीं रख सकते थे। एक ये बहुत अच्छी बात होगी, उनका दोगलापन सामने आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है सपोर्ट ऑफ चाइना।
At that time, China stood by Pakistan in that critical time, and it shows the very clearly that China is ultimately friend of Pakistan. So this is also very good thing that who is our friend and who is our foe एंड फ्रेंड के दरमियान जो डिफ्रेंशिएट था, डिस्टिंग्विश थी, वो क्लियर हो गई. ना सिर्फ चाइना बट ऑल्सो इस्लामिक कंट्री ऑल्सो सपोर्टेड पाकिस्तान एट दैट क्रिटिकल टाइम. तो बड़ा अच्छा क्लियर हो गया कि वेस्टर्न कंट्री का क्या नेचर ऑफ रिलेशनशिप है और इस्लामिक कंट्री और चाइना के साथ हमारा क्या रिलेशनशिप है. तो गर्ल्स, यहाँ तक तो स्टूडेंट्स हमारे पास आगे इफ़ेक्ट्स ऑफ वॉर तक बात हो गई. नेक्स्ट हमारे पास बात आती है यूनिटी एंड सॉलिडारिटी अमंग पाकिस्तान पीपल. देखें, यहाँ हमारे इत्तफाक और इत्तेहाद की बात हो रही है कि पाकिस्तानी पीपल के दरमियान इस वॉर से कितना इत्तेहाद हुआ. सबसे पहले बेसिक पॉइंट है यूनिटी ऑफ पॉलिटिशियंस. स्टूडेंट्स, you are very much know about that. At that time, Ayub Khan was the president of Pakistan, and he was known as the very democratic and martial law leader of that time. तो बड़ी कॉन्फ्लिक्शंस थी. अगर आपने रिमेंबर करें अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान में, तो वहाँ से भी आपको पता चलेगा कि पॉलिटिशियंस के दरमियान आपस में बहुत कंट्राडिक्शन हो गई थी. उनके आपस के मफाद और इस तरह के बहुत से पॉलिटिकल इश्यूज थे, अपने डिफेंस प्रॉब्लम्स थे, तो वहाँ बहुत से इश्यूज थे. बट एट द टाइम ऑफ वॉर ऑल दे फॉरगॉट ऑल देयर क्लैशेस एंड डिसाइडेड टू सपोर्ट गवर्नमेंट. सब भूल गए अपने मकसद, अपने इख्तलाफात, तमाम झगड़े, तमाम क्लैशेस को उन्होंने भुला दिए एंड दे डिसाइडेड टू सपोर्ट गवर्नमेंट. और उसी वजह से आवाम में भी, एक कॉमन पीपल में भी जितना हो सका उनमें भी इसी तरह के जज्बा जो है वो डेवलप हुआ. जो इंटरनल डिफरेंसेस थे वो भी ख़त्म हो गए. एंड ऑफ इंटरनल डिफरेंसेस was also there due to only this one. Cooperation of public with government. कॉमन पीपल ने बहुत ओपनली कोऑपरेट किया गवर्नमेंट के साथ. जितने दे फंड्स उनके रेज करने के लिए उन्होंने जितने भी डिफेंस फंड बनाए हुए थे, उसकी कम्युनिटीज़ बनाई हुई थी, दे ओपनली कंट्रीब्यूटेड इन दैट फंड्स. उन्होंने ना सिर्फ अपने फाइनेंशियली फंड्स को डोनेट किया बट ऑल्सो दे डोनेट देयर ब्लड एज वेल. अपने ब्लड्स डोनेट किए. बहुत से लोगों ने उस टाइम जंग की हालत में हर चीज़ की ज़रूरत होती थी. तो जो इंटरनल डिफरेंसेस में आप देख लें तो ऑफिसर्स हैं, पब्लिक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑफिसर्स, आम आवाम है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सब के सब एक साथ हो गए और उन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट किया. फंड्स रेजिंग करने में, ब्लड डोनेशन करने में उन्होंने एक दूसरे के साथ बहुत किया. अच्छा, ना सिर्फ कॉमन पीपल ने इस चीज़ में रोल प्ले किया बट देयर वाज आल्सो अ मेन रोल ऑफ द आर्टिस्ट. जो उस टाइम में मिली नगमे और मिली तराने गाए गए, वो मुजाहिदीन में एक नई रूप फूंक देते थे, बहादुरी की, एक जज्बे की, और वो आपस में इत्तेहाद के साथ रहने की और एक नए जज्बे के साथ लड़ने की जो रूप फूंकते थे, वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग सीन था उस टाइम. तो वो पाकिस्तानी आर्टिस्ट भी उन्होंने अपने आर्ट के थ्रू अपने सोल्जर्स की हिम्मत पे बढ़ाई, उनके साथ खड़े हुए. तो उस टाइम में आर्मी ऑफिसर्स देख लें, गवर्नमेंट ऑफिसर्स देख लें, कॉमन पीपल को ले लें या आर्टिस्ट को ले लें, दे ऑल played a very much important role in that war, और that's why Pakistan succeeded in that war. तो ये यहाँ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और आपके पास यहाँ ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी हमारे एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी इसमें से नेवल वॉर का शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है कि राइट व्हाट वर द नेवल वॉर, एंड इट इज़ ऑल्सो कम्स इन योर एक्सरसाइज एज वेल. तो सो स्टूडेंट्स, रीड thoroughly all this question carefully, उसको हाईलाइट करें. होप सो कि आपको तमाम पॉइंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे से समझ आए होंगे. तो उसके लिए ज़रूरी है कि दोबारा से इस लेक्चर को सुनें,
मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करें, जो MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए चीज़ें बताई गई हैं उनको हाईलाइट कीजिए। इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी याद कर लीजिए और इसी में से ही बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, वो भी आप याद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ ऑल बाय मी। नाउ इट्स योर task to learn and to memorize it thoroughly. Thank you very much.